Good afternoon, friends. We are ready with yet another heartening and inspirational session of the day. I'm Professor Arpit Trivedi, your moderator and host. Let me take you through the process of how we will conduct the webinar today. Our guest will address the batch for 30 minutes. First 25 minutes will be knowledge sharing and last 5 minutes will be question and answers. Students are encouraged to put their relevant to the topic questions in the chat box. I take a lot of pride in welcoming Mr. Bhim Singh Rajput for the session. Sir is one of the highly distinguished and respectable HR professional in the city. He is well known and respected in the industry circles for his readiness in mentoring students and professionals. Sir has a rich experience in the field of HR and has handled various leadership positions in the past. Currently, Sir is working at Tata International DLT as DGM HR, IR and Administration. Now, I request Rajput Sir to enlighten young minds with his words of wisdom. Over to you, Sir. Thank you so much for giving me this platform. Mr. Mishra Sir, Mr. Trivedi Sir, I'm feeling grateful to share my experience with you. So friends, first of all, I regret for the delay because of some emergency. I have to rush to hospital. However, we have started now. See, today's session is, as shared by Trivedi Sir and Mishra Sir, employee relations in the industry. So, Trivedi Sir, you might keep your camera on, and if I heard something from you, yes, no, so I'll feel that I'm audible to you. Sir, I'm very much available. Yeah. So, how many are? How big is the size? How many students are there? Sir, right now we have the total of 157 students available. Oh, great. By the means of YouTube channel, and some students and faculties are available here too, sir. Great. So my first question, I think all are from first year of MBA HR. Yes. Okay. So my first question, how many students are interested in HR and how many are interested in IR? So you can create a question, I would like to know, and then I will tell what is HR and what is IR. Sir, we will post it on the poll and I'll immediately come back to you in next 2 minutes with the answers, sir. Till then you can continue, sir. I'll give you the answer of the poll, sir. And again, the same sub question you can put. How many are male students and how many are female students? Okay, sir. Okay. So meanwhile, I will introduce myself. Already short introduction as given by Trivedi Sir. I am Bhim Singh Rajput, having industrial experience of around 30 years, you can say, round of 29 and a half years correct experience in different industries like Garware Wallropes, Elpro International Limited, and Lucas TVS Limited. Then I'm in Tata International Limited since last more than 10 years. In these 10 years, there are two tenures. One is 3 years and another is 6 years. So almost 9.5 means 10 years, you can say. I'm working with Tata International Limited as a corporate head, HR. DGM is the designation. There is a difference in designation and profile. My profile is of corporate head. In our coming discussions, there will be explanation about profile and designation also. And today I am speaking here. Only this audible speech will be there. There is no presentation, right, or no professional dikhawa type any presentation or anything. I don't believe in that. And in my opinion, core IR person should be like this only. There should not be any dikhawa, and there should be a ground level working and sharing experience. Sir, I have got the results of the poll. Right. Sir, right now, without much of the knowledge, there are 29 students who are willing to take HR as their preferred specialization. 29. Very nice. 15 are female and 11 are male. Okay.
So the batch is attendee is the size of 29. No, sir. Total attendee is 157. Sir. So out of 150, only we got poll for 29. 29, sir. Right now. And what about rest? Sir, they have multiple specializations available. We have taken the poll because a lot of people have not answered. So there might be some more, but right now this is the numbers that I could offer. Okay, maybe there could be confusion also. What is HR and what is IR? Yes, sir. Because this is the induction. We have not started their classes yet, sir. Okay. 29, you said, are interested in HR. HR, sir. 18 female, 11 male. And IR? Sir, nobody has answered on that, sir. They have answered only on HR. So I think there could be confusion in understanding what is HR and IR. So let me clear. Sir. There are two streams. One is HRS and one is HR. And another total different stream is IR. In HR means human resources. When you have chosen the field for education to learn in HR, so you should understand first what is HR and how many segments are there or how many streams are there further in HR. HR means not only HR. So human resources. So any industry cannot run without human resource. Means man. There are three important things in the industry. It is called as 3M. Man, machine and material. These three important things are there, 3M, without which industry cannot run. Out of these, man is very important. So man means what? What type of industry is there? What is the product? What are the machinery required? What is the skill and competency required? There are so many things. So in suitable to that product, that industry, man is required. So how we should make available the manpower resource for the industry so that industry can produce the quality product. So first of all, the job of HR, I am talking directly what is happening in industry. So college life, books knowledge, study or obtaining marks, that is different. And when you enter into the industry, you have to work on the ground practically. That is totally different. So I'm more focusing on that ground level working in industry. So first of all, when you complete your education, you enter any industry, you should understand basically and technically what is the product. Right, sir. What is the usage? Who is the end customer? Who is using it? Suppose company is manufacturing pen or notebook. So who is using it? Who is end customer? You are the end customer. Students in any class is using the notebook and pen. So what should be the quality of that product, notebook and pen? I'll be speaking in English and Hindi both. Whenever is required, I hope it is okay with you all. So जब हम कभी नोटबुक में लिखते हैं तो फर्स्ट ऊपर से लिखते हैं पेन से, तो बैक साइड में वो पेज के पीछे लिखावट दिखती है, फेड होता है इंक, तो वो पेज की क्वालिटी सही है? नो. तो हम बोलते हैं क्या बकवास नोटबुक है यार, किधर से खरीदा? तो हम गाली देते वो शॉप वाले से, शॉप वाले को. तो गलती शॉप वाले की होती नहीं, गलती होती है क्वालिटी जो जिसने वो मैन्युफैक्चर किया उस कंपनी की होती, और उस कंपनी में भी वो कंपनी के मालिक की नहीं होती, या मैनेजर की नहीं होती, वो जो एक्चुअल मशीन पे काम किया है वर्कर ऑपरेटर उसकी होती है. तो अगर आप मुझे पूछेंगे, इफ यू आस्क मी, तो मैं कहूंगा कि गलती उस वर्कर की भी नहीं है, गलती होती है एचआर मैनेजर की. एचआर मैनेजर इज द कल्प्रिट फॉर दैट बैड प्रोडक्ट, बैड पेज, जिसको हम क्लास में क्या बोलते हैं, यार क्या बकवास पेज है यार, फालतू बनाया. Next point is taking care of that manpower. If you identify the gap, then you have to take care
how you can fill up that gap technically. So you have to provide training. Training is second important factor. So recruit manpower, train manpower, and provide in the industry where you are working. Provide to the shop floor as an operator. In similar way, identify other tasks also. I spoke about technical in production department, that which is very important area of any organization. So that is like a engine of the train. बाकी के डिपार्टमेंट तो सब बोगी समझ लीजिए, सब लोग बैठते हैं, जैसे एचआर है, एचआर इज वन ऑफ द बोगी, बट इम्पोर्टेंट इंजिन विच रन is a production department, which is very important. We have to take care in production department. So this is manpower resources, human resources. So recruit right manpower, provide training and take care of them, motivate them, maintain their skill. तो ये होता है एक्चुअल ग्राउंड वर्किंग में. अभी आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट्स लाइक अ फैमिली. So it's any industry is like a family. जो हर फैमिली में मान लीजिए दो भाई बहने हैं, 2-3 या 4-5 कजिन्स है या 20-25 लोगों की फैमिली है, तो हर पर्सन इक्वल नहीं होता. या फिर फैमिली जो घर चलाने वाला होता है, मान लीजिए अपने फादर, तो उनको सबकी मर्जी रखनी होती है, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो सबको खुश रखना होता है. किसी को एजुकेशन में कोई लाइकिंग अलग होता है, कोई मेडिकल करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई वकालत करना चाहता है, डिफरेंट. तो फादर क्या करते हैं, सबका इंटरेस्ट मेंटेन करता है और उसको एजुकेशन में मोटिवेट करते हैं. कोई एमबीए एचआर करना चाहता है, कोई फाइनेंस करना चाहता है, तो अपने फादर क्या करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं. लाइक दैट एचआर का रोल होता है इंडस्ट्री में. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, स्टाफ, वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री में. तो सबको मोटिवेट करना है उनके अपने अपनी एरियाज में, सबको मोटिवेट करना है. तो हाउ यू विल मोटिवेट दीज पीपल. कोई सैलरी ज्यादा मांगेगा, कोई रोते आएगा मेरी सैलरी कम है, कोई बोलेगा मैं जहां काम करता हूँ वह फैन नहीं है, कोई बोलेगा एसी चलती नहीं है, कोई बोलता है कैंटीन में आज खाना ठीक से नहीं है, कोई बोलेगा मेरा फास्टिंग है, आज तो फास्टिंग का फूड दिया ही नहीं कैंटीन में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स वहां पे होते हैं, लाइकिंग्स होते हैं, एवरीडे चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. यू हैव टू फेस दीज ऑल टाइप्स ऑफ चैलेंजेस. इट्स नॉट अ सिंपल. आप लोगों को इतनी भारी फीस भर के आपके पेरेंट्स ने एमबीए को एडमिशन दिलवाया है, तो गेटिंग एमबीए डिग्री दैट इज फाइन. यू विल स्टडी हार्ड, यू विल गेट बुक नॉलेज, यू विल गेट गुड मार्क्स ऑल्सो, you will pass. When you will get job in an industry, that is a main challenge. आप वहां अगर सक्सेस होते हैं तब जाके आपने एमबीए की जो फीस भरी है उसका चीज होता है. अगर आप वहां फेल्योर हो गए तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ एमबीए. तो सबको मोटिवेट करना है, सबका ख्याल रखना है, सबको मर्जी रखना है. कोई झगड़ा करके भी 2 लोग आएंगे, इसने मेरे को ऐसे बोला, इसने मेरे को थप्पड़ मारा, तो वो दोनों को भी खुश रखना है और दोबारा वो गलती ना हो जाए ये केयर करना है. तो ये सब कैसे करेंगे. तो अभी अब तक जो मैंने डिस्कस किया, इसमें रिक्रूटमेंट आ गया, मोटिवेशन आ गया, डिपोटिंग राइट पर्सन टू राइट प्लेस आ गया. दिस इज कॉल्ड एज एचआर. और जब कोई कंप्लेंट्स आते हैं, ग्रीवांसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कंप्लेंट कैंटीन के कंप्लेंट आते हैं, कोई झगड़ा करके आता है, किसी का डिफरेंसेस होता है, जब आप ये सब फेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो जो मैंने डिस्कस किया, पहले केस बताया और उसमें से डिफाइन किया है कि व्हाट इज एचआर एंड व्हाट इज आईआर. नाउ आई थिंक पीपल कैन बी एबल, students can be able to say which field they like. Right, sir. तो IR में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा IR में है. HR तो है, anybody can do it. ट्रेनिंग करना है या त्रिवेदी सर को बुलाए, सर जी हमारे यहाँ पे ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे दीजिए. तो त्रिवेदी सर आएंगे, घंटा वो ट्रेनिंग देंगे, 25,000 का बिल दे देंगे और वो चले जाएंगे. मेरे क्या रे, मैं लिखूंगा मैनेजमेंट को, मैंने तो ट्रेनिंग दिया है, साल भर में
25 ट्रेनिंग अरेंज किए, एक से बढ़ के एक ट्रेनर लाए थे मैंने। आई हैव डन माय जॉब। तो उसका इफेक्टिवनेस कब होता है? वर्कर शुड अंडरस्टैंड टू विच ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग, व्हाट आर देयर ड्यूटीज, हाउ हैप्पी दे आर, हाउ मोटिवेटेड दे आर। इस पर डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस का। आपने एचआर वाले ने जो ट्रेनिंग दिया, उसका इफेक्टिवनेस तभी आता है जब लोग हैप्पी है, वो परस्यू करने के लिए रेडी है, जो भी आप बताना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं। तो अभी इसमें मैं खुद का एक एक्चुअल जो कहीं लिखा नहीं है वो शेयर करूंगा। हाउ आई मेड पीपल हैप्पी इन माय ऑर्गेनाइजेशन थ्रू गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। हाउ आई बिल्ड द रिलेशनशिप। मैंने देखा यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो ऑपरेटर क्या करता है, यार मैं भला मेरा काम भला, मुझे मेरी सैलरी मिलती है ना महीने में, दैट्स फाइन। त्रिवेदी सर, आई एम ऑडिबल? Absolutely, sir. You are very much audible to us. या तो ये थॉट बदलने के लिए मैंने सोचा, अरे यार ये थॉट तो ऑर्गेनाइजेशन को किल करने वाला थॉट है। महीने की सैलरी का सोच रहा है बंदा, तो दिस विल किल द ऑर्गेनाइजेशन वन फाइन डे। 10 साल कंपनी चलेगी, 10 साल बाद क्या होगा? तो कंपनी को घर कब समझेगा ये? तो मैंने उनसे इस तरह मिलना जुलना शुरू किया। तो मैं अपने एसी वाले केबिन में कभी ज्यादा देर नहीं बैठता। जब लंच टाइम होता है तो मैं वो वर्कर्स जहां लंच करते हैं, आई एम फोकसिंग मोर फोकस ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन का स्टाफ यानी इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स कहाँ बैठ के खाते हैं, क्या खाते हैं, वो डेली उनका ग्रुप किसके साथ होता है, किसके साथ बैठते हैं, फिक्स ग्रुप है या रोज चेंज होता है, वर्कर्स कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं, उनके ग्रुप्स कैसे होते हैं। तो खाना खाते समय लंच टाइम में उनके पास जाओ, उनके पास बोलो, अरे दत्ता क्या लाया टिफिन में, चलो देखते हैं, टेस्ट देखते हैं। उसके टिफिन में हाथ डालो, एक क्या बोलते हैं उसको मराठी में, एक घास बोलते हैं। तो उसके साथ में टिफिन से थोड़ी सी रोटी लेके खाओ, चटनी खाओ उसको, बोलो अरे साहब आए मेरे टिफिन में से लेके खाया यार, टेस्ट किया। यू विल फील अ डिफरेंट। तो एवरीडे ऐसा अलग अलग लोगों के साथ जाके मिल के बात करके उनके साथ एक करो, शेयर करो उनके साथ। किसी दिन बोलो उनका, यार आज मैंने टिफिन नहीं दिया, हमारे घर से टिफिन नहीं मिला, तेरा टिफिन मेरे को दे देगा क्या? तो बहुत खुशी से बोलेगा, सर मेरा आपको पसंद आएगा क्या चटनी रोटी? बोले नहीं, क्यों नहीं आएगा। तो उसका टिफिन ला के मैं केबिन में खाऊं। तो इस तरह से पहले मेक योर सेल्फ अटैच्ड विद द पीपल। लोग अपने आप को एक्सेप्ट करें, वो ये ना सोचे अरे ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया सूट बूट डाल के, किस कंपनी जाएगा, ये क्या करने वाला है अभी हमारी कंपनी में। ये वाली सोच उनके अंदर नहीं होना चाहिए। उनके अंदर वो सोच होना चाहिए कि अरे ये तो अपने में से ही लगता है, तो नया एचआर वाला है ना, ये तो अपने में से ही लग रहा है यार, रोज हमारे साथ आके खाना टेस्ट करता है, हमारा टिफिन टेस्ट करता है। तो ये फील उनके अंदर पहले क्रिएट किया मैंने। इसको मुझे 8-9 महीने लगे, 1 साल लगा। जब मुझे पता चला कि सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे अपना समझ रहे हैं, then I started lodging them what I expect। मैं क्या चाहता हूं, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी का गोल क्या है, तब आप उनके ऊपर वो लॉन्च करना शुरू करो। फिर वो आपको ऐसे साथ देंगे, ऐसे सपोर्ट करेंगे, आप एक बोलेंगे तो वो 2 करके दे देंगे। प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी रोज 100 चीज बनाने की होंगी 100 नंबर्स में, तो 110 नंबर्स देंगे विथ 100% क्वालिटी। व्हाई? बिकॉज द पर्सन डिमांडिंग इज फ्रॉम देम इटसेल्फ, एवरीबॉडी शेयरिंग देयर टिफिन। अपना समझते हो और अपना आदमी बोल रहा है यार, 100 बोलता है ना, हम 110 करके देंगे। ये थॉट वो उनके अंदर आता है। देन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस मेजर करेगा। हाउ एक्स पर्सन, हाउ राजपूत इज वर्किंग, व्हाट इज डिफरेंस आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ राजपूत। प्रोडक्शन पहले कितना हो रहा था, क्वालिटी पहले कंप्लेंट्स कितने थे, कस्टमर कंप्लेंट्स कितने थे, रिजेक्शन कितने थे, अब कितने हैं 1 साल के बाद। हाउ? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग IR, उनके साथ एम्प्लॉय रिलेशनशिप। IR इज नथिंग बट
एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अभी ये मॉडर्न लैंग्वेज में आज की दुनिया में एम्प्लॉय ER बोलते हैं उसको. एक्चुअली इट इज ट्रेडिशनल लैंग्वेज में IR बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. IR दिस वर्ड इज समथिंग वर्स्ट. वो कवर करता है नॉट ओनली द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द सराउंडिंग ऑफ द कंपनी. आपकी कंपनी कहाँ है? MIDC में है तो MIDC का ऑफिसर कौन है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर कौन है, लेबर ऑफिसर कौन है. अगर गांव है तो उस गांव का मुखिया कौन है, सरपंच कौन है. अगर उस गांव में MA MP MLA हैं तो कंपनी के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, हाउ दे आर सपोर्टिंग इन द कंपनी. नहीं तो फिर आए दिन आएंगे, अरे हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को लगाओ, हमको ये काम दे दो, हमको इतना पैसा दे दो, नहीं तो फिर आपकी कंपनी हम चलने नहीं देंगे. आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा. तो ये सब आउटसाइड रिलेशनशिप जिसको पब्लिक रिलेशनशिप बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर IR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो आप आजू बाजू के लोकल अथॉरिटी से कैसे रिलेशंस रख रहे हो, एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशंस रख रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कंपनी कैसे चल रही है. दिस इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. एंड HR means recruitment, proper recruitment, proper training, proper motivation, make them motivated with different types of engagement activities, training activities. That comes under HR. और HR और IR ये दो डिफरेंट सेक्शन जब साथ में काम करते हैं, then company's profit, company's growth, company's future is 100% सक्सेस, 100% परफेक्ट होता है. इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, जब ये सक्सेस अचीव हो रहे, कंपनी इज अचीविंग देयर गोल्स एंड टास्क सक्सेसफुली, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस वहां पे मैनेजमेंट मेजर कर रहा है, इट इज विजिबल एंड आपका सक्सेस वहां पे दिखता है. योर ग्रोथ इज ऑल्सो इक्वली सक्सेसफुल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे. ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं while you are studying, gaining the knowledge from books and your teachers. This is also equally important to have frequently. My request is toward Trivedi sir कि हर साल कुछ फील्ड वर्क के लिए आप स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं. ऑलरेडी यू माइट बी डूइंग इट, आई नो, but just take it as a suggestion. So when students come to close to the industry right from first year, they understand, they let them have interactions with HR through industrial visits or through guest lecture calls. अभी आज आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम ऑनलाइन में ये सब मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, दैट इज गुड. बट अगर आप मुझे कभी मौका देंगे पर्सनली इंटरेक्ट करने का क्लासरूम में, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. Absolutely, sir. Even we are looking forward to it, sir. Yeah, exactly. But today's situation is not allowing that. Also, I understand. But ये मेरा suggestion है. So, students should understand. First, you should keep in mind why you have chosen this field. Second point, you should keep in mind how much you have spent to gain this certificate or complete this course of MBA. Third important point, ये जो एक्सपेंडिचर आप कितना स्पेंड किया, वो जब काउंट करोगे जो अमाउंट आएगा वो पेरेंट्स ने कहाँ से लाया, कैसे लाया. Very true. Always my humble request and appeal to all students, always keep in mind कि जो खर्चा है वो कहाँ से आया और हमारे पेरेंट्स ने कैसे लाया. This thought will motivate you yourself to complete successfully this course and to gain industrial knowledge and in your future success. हर महीने में एक बार 10 मिनट आंख बंद करके बैठने हैं अपने अपने रूम में या हॉस्टल में, आप जहां भी हो, और उस वक्त सोचने, खुद को क्वेश्चंस करने, आस्क क्वेश्चंस टू योर सोल. Who am I? Why I chosen this course?
how I am spending money to complete this course, and what I want to do after completion of this course. Maybe you can add at your own some more questions in this list. 10 मिनट्स आंख बंद करके आप इतने क्वेश्चंस खुद के सॉल्व को पूछेंगे, जो आंसर आएंगे आप अपने पास ही रखेंगे, एंड देन आप अपने स्टडीज में लगे रहेंगे. एंड आई एम श्योर this will help you to complete your session, your course successfully. And when you enter into the industry, I'm sure this thought only will support you to achieve the success. That's all. और एक सेक्शन बच गया, HRS, I said, Human Resource Services. Sir, we can continue, sir. There is no problem. So you can take your time. Yes. So I spoke in short about HR. I spoke in short about IR. I spoke about. I'm speaking about HRS, means Human Resource Services. What are these services? These services are like provide good quality of food in the canteen, salary, process their salary, keep their record of attendance perfectly. That nobody should have a complaint कि अरे मैं तो 25 दिन आया था, आपने मेरी सैलरी तो 23 दिन की निकाली, 2 दिन की सैलरी नहीं आई, तो फिर आप बोले अरे आई एम सॉरी, वो दिन मैं नहीं था तो मैं आपका अटेंडेंस मार्क करना भूल गया. These all kind of activities comes under HRS. So record keeping, उनकी लीव रिलेटेड जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री it differs how many leave they are giving. What is casual leave? It might be there in your academics. I think CL, casual leave, वहाँ पे कुछ casual leave होते हैं. That comes under Act. As per Act, Factories Act, every industry should give to employee some part of casual leave, some part of sick leave, some part of earned leave and privilege leave. Both are same. So आपके बुक्स में PL लिखा होगा, privilege leave. तो इंडस्ट्री में उसको earned leave बोलता है. तो ये सब रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है, देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, एंड ऑपरेटर और स्टाफ शुड बी हैप्पी कि आई एम गेटिंग राइट टर्म सैलरी, आई एम हैविंग परफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ माय लीव, आई एम हैविंग परफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ माय मेडिकल अलाउंस, LT अलाउंस. सो ये सारी चीजें, जो इंश्योरेंस, जब भी मेरे घर पे फैमिली में किसी को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है तो आई एम गेटिंग राइट बेनिफिट एंड राइट टाइम थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी. ये सारी चीजें जो परफेक्ट मेंटेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज HRS, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज. अभी इसमें आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, हाउ मेनी आर मेल एंड हाउ मेनी आर फीमेल. सो उसका इंटेंशन ये था कि मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स चूज टू वर्क इन HR सेक्शंस. रिक्रूटमेंट्स, ट्रेनिंग्स, मोटिवेशंस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये फीमेल एम्प्लॉयज ये चूज करते हैं, बिकॉज IR में चैलेंजेस होते हैं. आपने सुने होंगे कि बहुत सारे कंपनियों में दैट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक द नेम ऑफ द कंपनीज हियर, बट आई एम श्योर यू माइट हैव सीन और read in the newspapers or news channels, किसी कंपनी के वर्कर्स ने वहां के HR हेड को पीटा, घेराव डाला, उनके घर पे पत्थरबाजी की, या फिर कुछ कंपनियों में ऐसे भी है कि उसके केबिन में आग लगा दी, किसी की डेथ हो गई HR वाले की, ऐसी चीजें भी है. सो व्हाई दिस थिंग्स हैपन्स? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय रिलेशनशिप. It is very important factor. How you are having the relationship with people in your organization. This is very important. If you make a family relationship with them, I'm sure very cool and smooth relationship will be there in the organization with the management and operators. It depends on HR person. Very crucial role is there of the HR person. जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इसके लिए मैं जानबूझ के PPT नहीं बनाया. PPT में क्या दिखाना है, किस कंपनी में HR ने कैसे क्या किया, IR में किस वर्कर्स ने क्या वाइब्रेंट एक्ट किया, ऑल दीज थिंग्स न्यूसेंस. तो बेसिक थिंग ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ सराउंडिंग ऑफ द कंपनी
I mean local authorities and directly employees in the organization. तो ये सब फीमेल्स को ज्यादा चैलेंजेस आता है. कोई गुंडा आता है, सरपंच आता है, एमपी एमएलए आते हैं, तो हमको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप हमारा क्रेन लगाओ, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, आप हमारा ये लगाओ, वो करो. तो फीमेल्स को चैलेंजेस होते हैं, उनके सामने खड़े रहना है, चैलेंज देना है, बात करना है. कभी कभी ये भी होता है कि क्या कर लोगे आप, नहीं मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट. This is the reason I asked how many is the strength of male and female. So ऐसा नहीं है कि मैं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि फीमेल्स को आईआर में नहीं जाना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है. इफ somebody is interested, that is very good. आजकल फीमेल्स में किसी इसमें कम नहीं है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में फीमेल्स आर देयर एंड दे आर already performing the many challenges jobs. My best wishes to all of you when you enter in the organization, and I would be happy at that time. Sometimes we will meet, अगर मैं किसी को कुछ सपोर्ट कर सकूं, हेल्प कर सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका रहेगा. So I think अभी इस पे बात करने के लिए तो वैसे 8 hours वर्कशॉप भी मेरे लिए कम रहेगा. But looking to the time constraint, I am completing here. I hope I have touched all 3 important factors in HR. So if anybody is having any question, so now I can say there will be a question and answers, Trivedi sir. I have it's all questions, sir. I right, would like right. to put forward. One of my students Sure. has asked, sir, what is your view on the scope of jobs and opportunities post-pandemic for freshers? Yeah, there is yes, very good question. But nobody should worry or need not worry. There will be a huge opportunities in getting jobs. As such, there will not be any problem, because there are so many other countries are coming to our country for investment, and there are so many, and has हमको सिखाया है पैंडेमिक ने कि how we should survive and what steps we should take for survival. Maybe job opportunities, maybe business opportunities. So there are many peoples like who are having experience in industry and all things, and government is promoting them to have some startup businesses. So startup business में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और न्यू बिजनेसमैन्स, जैसे मैं कुछ सोचूंगा कि मैं भी खुद मैं बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किए हैं, तो मैं ये इंडस्ट्री रन कर सकता हूँ, तो छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग अभी उभर के आ रहे हैं जो जॉब छोड़ के इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, और वो 50 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं अभी इंडिया में पोस्ट पैंडेमिक. सो नीड नॉट वरी फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज. दिस इज माय ओन व्यू. Sir, my second question to you is, sir, what skill set you may consider while recruiting a fresher from management? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स में 95-99% होते हैं, बट जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो पसीने छूटते, वो बोल नहीं पाते. आप उनको एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर दोगे तो 99% वो लिखेंगे, बट जब इंटरव्यू में बोलने की नौबत आती है तो पसीने आएंगे, वहां पे 10% मिलेगा. सो ऐसे जिसको लगता है तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा. दोज हु आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट कैन गेट एनी काइंड ऑफ जॉब in any kind of industry. Right. But those who are good in academics but shy in interview or speaking or self presentation or self selling, they have to build their confidence level. This is the only thing. Our approach should be right, attitude should be right, and confidence level should be high. This only help you to get the job and then fulfill your competency for which position you have been recruited. Excellent.
Sir, I have one more question for you. My student is asked, sir, how to refrain from office politics, which is normally the case in India? Case and Sir, normally the case in India. हिंदुस्तान में ऑफिस पॉलिटिक्स काफी चलती है, तो उससे खुद को कैसे बचाए रखें? In India, again, I would like to say already big session. It depends how you are efforts to build or establish a culture. मे भी आप जब एंटर करेंगे तो कल्चर डिफरेंट होगा. यू विल फाइंड पॉलिटिक्स ओवर पीरियड यू टेक इट एज अ बिल्ड अ कल्चर. बट आई हैव सेड इन माय सेशन व्हाट आई डिड इन माय ऑर्गेनाइजेशन. कौन है कोई रीजन कैटेगरी से है, कोई हिंदी, कोई नेवर सीन, कोई एक्सपीरियंस रहे, कोई छोटे, कोई या सर आई एम सॉरी अगेन इज इट ऑडिबल? यस. तो ये कुछ नहीं देखना है, तो उनमें शामिल होना है. एक एग्जांपल मैं और भूल गया अभी, इस क्वेश्चन पे मैं शेयर करना चाहूंगा. आई स्टार्टेड वन सिस्टम इन माय ऑर्गेनाइजेशन कि लंच टाइम में उनके साथ उनका टिफिन शेयर करते करते मेरी टीम जो है 12 लोगों की टीम है, HR में एंड IR में मेरे साथ. सो मैं खुद स्टार्ट किया कि होम विजिट्स, एम्प्लॉय होम विजिट्स. एम्प्लॉय को मैंने स्टार्ट में क्या करता हूँ कि सडनली एक एम्प्लॉय को कॉल करता हूँ, 1 घंटा नोटिस देता हूँ. 1 बजे का लंच टाइम होता है, 12 बजे उसको कॉल करता हूँ, अरे गोपाल आज चल तेरे घर चलते हैं खाना खाने लंच के लिए. तो बोलता है सर अभी 1 घंटे में आपको मैं क्या खिलाऊंगा घर पे, माँ तो काम पे गई होगी, खेत में गई होगी, पापा ड्यूटी पे होंगे, अरे जो भी है हम अपने हाथ से लेंगे खाएंगे चलो. तो 1 घंटा पहले बताता हूँ. वो अपने माँ बाप को बोलता है, घर में बीवी बच्चे वो बोलता है कि सर आ रहे हैं यार, क्या करें. तो उतने में पहुंच जाना है घर पे, जो है चलो उनके घर जाता हूँ. बोलता है चलो रोटी कहाँ रखी है, सुबह सब्जी क्या बनाया था, सर सब्जी खत्म हो गई, कोई बात नहीं है, चटनी है, दही है, दूध है, नहीं है सर ठीक है, बाजू के शॉप से दही लेके आओ. जो भी रोटी है सर बासी है, कोई बात नहीं यार. तो उसके साथ चलो बैठो खा लो. तो मान लो उसके बीवी बच्चे घर पे है, माँ है, तो आप भी बैठो खा लो. तो सबके साथ बैठो, ऐसा गोल डाइनिंग टेबल पे नहीं है, नीचे फर्श पे. तो उनके साथ खाना खा लो, चटनी रोटी. तो जैसे ही खाना होता है सबको ग्रुप में खड़ा करो. तो किसी को बाजू वालों को बुला के एक फोटो लेने बोलता हूँ, तो वो ग्रुप फोटो होता है. तो ऑफिस में जाता हूँ मैं, वो फोटो इमीडिएटली ऑफिस में मैंने ऐसी फैसिलिटी करके रखी है कि उसको डेवलप करके फ्रेम करें. तो 15 मिनट में फोटो फ्रेम करके लाता है मेरा बंदा डिपार्टमेंट का. तो वो फोटो फ्रेम उस वर्कर को देते हैं, तो ये अपना इवेंट का फोटो है. तो वो वर्कर शाम को घर पे फोटो दिखाता है, वो दीवार पे लगाता है और रोज उसको देखते हैं. तो उस फैमिली में एक डिफरेंट टाइप का फील क्रिएट होता है. अरे इतने बड़े सर हमारे घर पे आके गए, चटनी रोटी खा के, हम उनको अच्छा खाना भी नहीं खिलाए, लेकिन वो सबके साथ बैठ के खाना खाए. तो ये आपका रिलेशनशिप जो है, जो घर तक पहुंचता है. वो उस विजिट में पूछता हूं मैं कि आपका बेटा या आपका पति घर आने के बाद कंपनी के बारे में क्या बात करता है. 6 बजे कंपनी से निकालता है तो सीधा घर आता है, कितने बजे आता है, या 9-10 बजे पहुंचता है. तो उस बीच कहाँ होता है, क्या करता है, पीता है क्या, खाता है क्या, या टाइम पे घर आके अपना खेती बाड़ी का और दूसरा घर का काम करता है. तो इस लेवल पे मैंने जाके पहुंच के इवन विद द स्टाफ फैमिली मेंबर्स आल्सो. सो उनके घर पे अगर वो बंदा कुछ इधर उधर करता है तो उसके घर से बच्चे का या बीवी का या माँ का मुझे फोन आता है, सर ये ऐसे ऐसे है. तो उसके अंदर एक डर क्रिएट होता है, यार मैं गलत करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे माँ बाप इनको फोन करते हैं सर. तो दिस हेल्प टू बिल्ड द कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप एंटर करें पॉलिटिक्स है तो भी आपके इस तरह के रिलेशनशिप से वो कल्चर चेंज हो जाएगा. राइट सर. आप खुद एक अपना कल्चर बिल्ड करोगे. अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू आर टेकिंग एफर्ट्स टू बिल्ड द कल्चर और चेंज द कल्चर. पॉलिटिक्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मे बी इंडस्ट्रियल और मे बी
educational institutes. Organization is organization. So it depends how the leaders are creating or taking efforts to create the culture or Right. change the culture. Absolutely, sir. So very well. Again, approach. आपका approach है. How you approach to that issue. अरे यहाँ पॉलिटिक्स है यार, नहीं करना है, दूसरे कंपनी में जाना है, आपकी मर्जी. आपको चैलेंज लेना, नहीं मैं चेंज करूंगा. Approach is important. Absolutely. Anything more? No, sir. With this, we would bring our session to conclusion. On behalf of IIEBM staff and students, sir, I thank you for sharing your valuable thoughts. In spite of such a situation, you made out time for students, and you spoke with so much of simplicity, not only about the difference between HR and IR, but also how one should look at job, one should look at compassion, empathy as part of the job. Exactly. The way you spoke on relationships, nurturing relationships is the mantra that my students have received from this talk going ahead. Thank you so much, sir, for your time and for your support to my students. We would be very keen my and pleasure. happy to invite you to the institute when things are fine and we can meet on personal level. Thank you so much, sir. Jai Hind. Namaskar. Great. Yeah, great. Thank you so much and wish you all the best to all students. My best wishes are there. And I would be happy to interact personally in the classroom if I get a chance in future. Thank you so much for calling me. Thank you.